dear children, I have explained you last speaking stories of stolen childhood and today's turn of NCERT based question and answer. I sent you a pick questions, but you have not sent any work, question or answer. Write questions, after that answer it. What is Sarhat looking for in the garbage dump? Questions. What is Sarhat looking for in the garbage dump? Garbage dump. Dump, D-U-M-P-S. Dumps माने ढेर होता है. Where is he and where has he come from? Where is he and where has he come from? वह कहाँ है और कहाँ से आया है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे. साहब is looking for gold. गोल्ड का मीन्स यहाँ पर मनी से है. इन द गार्बेज heap. In the garbage heap लिख सकते हैं या डंप्स लिख सकते हैं, जो भी आपको उचित वर्ड लगे. He is वह कहाँ है और कहाँ से आया है. ये मैंने पढ़ाया था आपको, कहाँ है और कहाँ से आया है. फर्स्ट उसमें पैसेज में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा. सीमापुरी वह कहाँ पर है, कहाँ से आया है. कचरे से सोना खोजता है, तो इसमें he is near a heap of garbage. He has come from nearby cottage. Next question. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? What explanation does the author
offer for the children not wearing footwear. इसका राइट आंसर the author explain about many children who were not wearing footwear. It is not poverty, but it seems as tradition. As tradition, not to wear shoes. ये बच्चों दिख रहा है आपको पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं राइट कर रहा हूं। Is Sahab happy working at the tea stall? Explain. Is your Sahab happy working in a tea stall? Explain it. Sahab is happy working in a tea stall because he can pay 800 rupees per month and
good and enough for him. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what makes the city of Firozabad famous? What makes the city of Firozabad famous? इसका आंसर क्या लिखेंगे? Firozabad city is famous for bangles and other glass items. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द hazard of working in the glass angles industry. In the glass bangles industry. The glass
Angle, industry, is in Firozabad. Little children with their parents often doing hard work in high temperature furnace. In the dark and dusty lands. Next question. How is Mukesh's attitude to his situation? How is Mukesh's attitude to his situation? Different from that of his family. Different from that of his family. Mukesh is engaged in the glass bangle industry. He suffered much, but had not earned enough money to survive his family.
बच्चों इसे मैंने लिखाया है और इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं और भी, ये मैं आपको पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें से शॉर्ट टाइप हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रह गए हैं। ये आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे, कंप्लीट करेंगे और वर्ड मीनिंग पहले लिखेंगे। वर्ड मीनिंग अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वर्ड मीनिंग अवश्य पूछेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें से लास्ट जो पैसेज रह गया था वो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि लिखाना बहुत बड़ा काम है, लिखाया नहीं जा सकता इतना बड़ा। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने लिखाए, आगे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए। लास्ट पैसेज था बच्चों और इसको आपको पढ़ना है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। He has a roof over his head, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. But even enough to eat rings in every home. The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad years of mind numbing toil have killed all इनिटेटिव्स एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, पहले वर्ड मीनिंग ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद इसकी हिंदी। वर्ड मीनिंग, हियरिंग हिम वन वंडर्स, यानी किस उसकी बात सुन करके आश्चर्य हुआ होगा। हियरिंग हिम माने सुन करके, हिम माने उसकी, वन वंडर्स आश्चर्य हुआ होगा। इफ ही हैज अचीव्ड, कि उसने वास्तव में उपलब्धि प्राप्त कर ली है। व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो बहुत से अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाए, अर्थात व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसे लोग अपने जीवन में कई बार असफल हुए हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, कहने का तात्पर्य है उसके पास सिर छिपाने के लिए जगह तो है, मकान तो है। The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles. Making bangles शब्द यहाँ से लेंगे, चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस, व्यापार। बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के लिए, कैरी ऑन, कैरी ऑन माने चलाने के लिए, एक्सेप्ट एनीथिंग, अतिरिक्त कुछ भी न कर पाना। ठीक है, अतिरिक्त कुछ न कर पाना। नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त भोजन भी न मिलना। इन एवरी होम, प्रत्येक घर में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के अतिरिक्त कुछ भी न कर पाना, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन भी, ठीक है, न मिलना। और इसके बाद लिखा है हैविंग मनी, और पैसा न होना, पैसा न होना। ये क्या है? द क्राई ऑफ नॉट हैविंग, ये केवल चीख पुकार ही नहीं है, अर्थात ये हर घर से चीख में गूंजती है, अर्थात ये चीख हर घर से निकलती है। इसका मीन्स ये हुआ, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग्स एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। इसका मतलब हुआ चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के अतिरिक्त कुछ भी न कर पाना, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन भी न मिलना, पैसे न होना। ये पैसे न होने की चीख जो है हर घर से सुनाई देती है, हर घर से निकलती है। नेक्स्ट लाइन है, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स। यंग मैन यानी नौजवान, इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, अपने बड़ों के गम में डूबे हुए हैं। इको माने यहाँ पे डूबे हुए हैं, लेमेंट माने गम में, ऑफ दियर एल्डर्स माने अपने बड़ों के। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, ऐसा प्रतीत होता है कि इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहने का तात्पर्य है कि
ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, वर्षों से जो दिमाग में शून्य करने वाला जो हार्ड वर्क है, किल्ड ऑल टॉयल, टॉयल माने होता है कठिन परिश्रम, दिमाग को शून्य करने वाला जो कठिन परिश्रम है वो क्या कर रहा है, ये मस्तिष्क को शून्य कर रहा है। और उसके पहले क्या कर रहा है, इनिटेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की क्षमता को भी समाप्त कर रहा है। अर्थात उसने ना तो कठिन परिश्रम करने से पहले हमारे दिमाग को शून्य कर दिया है, और यहाँ तक कि हमें जो है स्वप्न देखने की क्षमता को भी समाप्त कर दिया है। Why not organize ourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a special that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ये यहाँ पर पैसेज है, पैसेज में वर्ड मीनिंग ध्यान से सुन लें। यहाँ पर ऑर्गेनाइज जो लिखा है संगठित करना होता है, और विशियस सर्किल लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है सिचुएशन यानी स्थिति, और या ये भी कह सकते हैं ऐसी स्थिति जिसमें समस्या समाप्त ना हो, इसको हम कहते हैं विशियस सर्किल। और दूसरी वर्ड मीनिंग है मिडिल मैन। मिडिल मैन का मीन्स होता है मध्यम वर्गीय, बिचौलिया जिसे कहते हैं, ठीक है। मिडिल मैन होते हैं जो व्यापार में या हमारे कार्य में बिचौलिए का कार्य करते हैं, वो मिडिल मैन होते हैं। टैप्ड मीन्स होता है फंसाना, किसी को फंसा लेना, और हार्ड अप होता है खिंचाई करना या सिकुड़ जाना, तोड़ मोड़ करना। ड्रेज्ड टू जेल, खींच करके जेल में डाल देना। एपैथी शब्द की वर्ड मीनिंग है रुचि का अभाव यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए हिंदी समझ लीजिए। मैंने नौजवानों के समूह यानी यंग मैन के ग्रुप को मैंने जो बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए, मिडिल मैन के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो उनके फादर्स एंड फोर फादर्स यानी बाप और परदादा यानी दादा और परदादाओं को टैप माने जाल में फंसाते रहे, से कहा कि आप लोग अपने को सहकारी यानी कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति के रूप में ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित क्यों नहीं करते हैं। दे से वे कहते हैं इफ वी आर नॉट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित नहीं हो तो पुलिस क्या करेगी, ट्रैप्ड ड्रेज्ड टू जेल यानी पुलिस जो है जेल में हमारी खिंचाई करेगी, एंड बीटन और हमें पीटेगी, फॉर इलीगल वर्क हमें अवैध काम करने के कारण, और ड्रेज टू जेल में खींच करके डाल देगी। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो एनी लीडर, कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी देयर इज नो एनी मैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो थिंक डिफरेंट अलग तरह से सोचता हो, ये और हेल्प अस और हमारी मदद करे। इसीलिए उसने कहा है कि वी आर एज टायर्ड एज आवर फादर्स, यानी उनके पिता उतने ही थके हैं जितने वे हैं। वे कुंडली की बातें करते हैं यानी अपने भाग्य की बातें करते हैं, जिनका देयर इज नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है। कुंडली गरीबी की रुचि के अभाव के कारण है, लालच और अन्याय के कारण होती है। अर्थात हम भाग्य को कोसते कब हैं, जब हमारे पास संसाधन का अभाव होता है। लास्ट रह गया, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। लिखा हुआ है लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukaras, the middlemen, the policemen, the keepers of law and bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware
he accept it as naturally as his father. To do anything since would mean to dare, and daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to a garage and garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk. He insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground in his small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. यानी इसकी हिंदी आपको समझनी है, वर्ड टू वर्ड समझते हुए चलना है। डिस्टिंक्ट माने होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। वेब माने होता है जटिल या एक टफ सिस्टम को हम वेब कहते हैं, वैसे वेब माने मकड़ी का जाला होता है। ठीक है। बर्डन मीन्स होता है बुरी तरह से बोझ में दबा हुआ। स्टिग्मा जो होता है इसकी वर्ड मीनिंग होती है कलंक या दाग जिसको कहते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है तानाशाही यानी अधिकारीगण यानी ऑफिसर वर्ग। और इसके बाद जो वर्ड मीनिंग आई है आपके इम्पोज द बेगर ऑन द चाइल्ड, इसका मीन्स होता है बच्चों को दीर्घकाल यानी लंबे समय तक स्वीकार करने के लिए विवश होना। पुट डाउन मीन्स होता है नियंत्रण करना। अवेयर मीन्स होता है जानकारी होना। टू डेयर मीन्स साहस करना। ग्रोविंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। आई सेंस आई फ्लैश ऑफ इट का मीन्स होता है दिखावा या भाफना। मरमर मीन्स होता है बुदबुदाना यानी धीरे से कहना। और एम्ब्रेस मीन्स होता है लज्जित होना या शर्मीले होने की भावना प्रदर्शित करना। रिग्रेट मैंने होता है पश्चाताप करना। हर्टलिंग मीन्स होता है रफ्तार से चलना। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है। आइए हिंदी पढ़ लेते हैं। उनकी बातें सुनकर दो अलग अलग दुनिया मुझे दिखाई देती है। एक दुनिया तो अपने परिवार को जो गरीबी के जाल में फंसी है, पहली बात तो वेब ऑफ पॉवर्टी में है। और जो जाति यानी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जात के कलंक से दबी हुई है। दूसरी दुनिया विच दे आर बॉर्न, जहाँ वे पैदा हुए हैं। दूसरी दुनिया वो है जहाँ पर कौन से मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, साहूकार हैं। ठीक है। और पुलिस है, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले हैं। और ब्यूरोक्रेसी और जो है सरकारी अधिकारी हैं। पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ हैं। एक जो है सर्किल बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विशियस सर्किल यानी एक निर्मम चक्र बना हुआ है। इन दोनों दुनियाओं ने मिलकर के लिखा हुआ है। इन दोनों दुनियाओं ने मिलकर के क्या किया है? दुनियाओं ने मिलकर बच्चे का एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिससे छुटकारा नहीं पा सकता। अर्थात बच्चे के ऊपर सारे कानून और सब कुछ उसमें लाद दिया गया है जिससे छुटकारा नहीं पा सकता। इससे पहले कि वो जागरूक हो, अवेयर हो, बिफोर ही इज अवेयर यानी इसके पहले वो जागरूक हो, वह इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। वह ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, जैसा कि उसके पिता ने स्वीकार किया था। ठीक है। टू डू एनीथिंग सिल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कहने का मतलब ये है कोई अन्य कार्य करने का अर्थ दुस्साहस करना होगा। और दुस्साहस करना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट ग्रोविंग, समझ गए? ग्रोविंग अप ये परवरिश का कोई हिस्सा नहीं है। आप जब मैं मुकेश के तत्व को की झलक देखता हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है। वह बार बार ही सेज अगेन, वह बार बार कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। और वह गैराज में जाएगा, ही विल गो टू गैराज और काम सीखेगा, पर गैराज उसके घर से बहुत दूरी पर। वह दृढ़तापूर्वक कहता है मैं पैदल जाऊंगा। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? एकदम चुप हो जाता है, भूमि की और जमीन की ओर देखने लगता है और कहता है नहीं। उसकी छोटी सी जो मरमरिंग है यानी गुनगुनाहट है, बुदबुदाहट है, वो एम्ब्रेसमेंट की एक शर्म की भावना है जो अभी खेत में परिवर्तित नहीं हुई है। वह कारों के सपने से संतुष्ट है जिनको वह कस्बे की गलियों में बहुत तेज गति से दौड़ता देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर हवाई जहाज ना के बराबर उड़ते हैं, अर्थात हवाई जहाज उड़ते ही नहीं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।